വെൽക്കം ടു പാടി ഫുഡ്സ്. അപ്പം ഞാനും മനോജൊക്കെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ആഗ്ര ഫോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. അപ്പോൾ മനോജിന് എന്താ പറയാനുള്ള ആഗ്ര ഫോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു എന്തെന്നാലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഉള്ളിൽ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. എന്തായാലും നമ്മളുടെ കൂടെ വന്ന ഒരാൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടിക്കറ്റ് ചാർജൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്, 50 രൂപയും കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് തിരക്കുണ്ട്, നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഏത് ടൈമിലും ഇവിടെ നല്ല തിരക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ നല്ലത്, സാറ്റർഡേ സൺഡേസൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ നല്ലത്. വീക്ക് ഡേയ്സിലാണ്, വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലാണ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയതും ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. Taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. ഇതാണിപ്പോൾ ആഗ്ര ഫോർട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റ്. ആഗ്ര ഫോർട്ടിലാകെ 40 രൂപയുള്ള ഒരാൾക്ക് എൻട്രൻസ്. പക്ഷേ 40 രൂപയിൽ 400 രൂപയ്ക്ക് കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് കാണാം. Look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Then 75% Agra Fort Defense Army, Mughal time Mughal Army, British time British Army, right now Indian Army. तो ओनली आगरा फोर्ट 25% एरिया आप लोग विजिट करने जा रहे हैं. आगरा फोर्ट का सबसे फर्स्ट गेट नेम अमर सिंह गेट, जहाँ से अभी आपका एंटर हुआ है. एंटर गेट, आउट गेट फॉर द सेम फॉर द वन गेट. सेकंड गेट टिकट चेक, नौबत खाना. नौबत खाना मीन्स शहनाई सिस्टम. जब बादशाह लोग एंटर करते थे तो शहनाइयाँ बजती थी बादशाह के वेलकम के लिए. और सेकंड गेट से मैं आपको अंदर लेके आया. पर लेकिन आगरा फोर्ट को 4000 वर्कर ने कंप्लीट किया. 35 लाख रुपीस के बनने में खर्च हुआ था उस जमाने में. लेकिन इसको स्टार्ट किया मुगल किंग अकबर. अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब, लास्ट फॉर द मुगल बहादुर शाह जफर. लेकिन स्टार्टिंग 1565 1573 कंप्लीट 8 इयर्स के अंदर अकबर सन जहांगीर का बिल्डिंग बनके तैयार हुआ. ऊपर आप देखिए दीवारों के ऊपर गरम ऑयल, गरम वाटर. इन जमाने में दुश्मन के ऊपर बादशाह लोग फिरवा देते ताकि दुश्मन बिल्डिंग रेजेंसी के अंदर हमला ना कर सके. ऊपर से पत्थरों के रॉल फेंके जाते थे. लास्ट कमान होता था अकबर के जमानों में तीरों से वार करना. विल टू आगरा फोर्ट यूको सिस्टम. लेकिन आगरा फोर्ट में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अकबर सन जहांगीर, बाप और बेटे का बिल्डिंग. पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी गाड़ी में जितने भी क्लाइंट टूर ले रहे हैं सभी लोग अपनी अपनी मुमताज का हाथ पकड़ के चलेंगे, और जिनके पास नहीं है वो मेरे हाथ के ऊपर रखना. As you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് പറയാം. എങ്ങനെയാലും നടന്ന് കാണാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. goes up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. फर्स्ट प्लेस अकबर सन जहांगीर, बाप और बेटे का बिल्डिंग. बैक साइड रेड स्टोन पास, क्योंकि जिस स्टोन को बादशाह ने परचेज किया भरतपुर,
शाहजहां ने लिविंग व्हाइट मार्बल परचेज किया मकराना राजस्थान डिस्ट्रिक्ट नागौर से। बिल्टू आगरा फोर्ट के लिए इस बिल्डिंग को कंप्लीट भाग के अंदर बना के तैयार करा, क्योंकि अकबर 3 वाइफ, हिंदू वाइफ जोधा, मुस्लिम रानी रुकैया बेगम और तीसरी बीबी क्रिश्चियन थी मरियम, गोवा की रहने वाली। जहांगीर 2 वाइफ, हिंदू एंड मुस्लिम, पर शाहजहां का 7 वाइफ था, 7 बीबियां थी। 4 बीबियां खत्म हुई, 3 बीबियां साथ में रही। सबसे खूबसूरत बीबी मुमताज, जिसकी याद में बादशाह ने इस ताजमहल को बनाया। फिर बादशाह अकबर के पास इतना पैसा था कि उसने अपने जमाने के अंदर 3 वाइफों को डीलिंग किया। इंडियन परसेंट एक वाइफ को डील करते करते लाइफ डाउन चली हुई है। लेकिन आगरा के लिए बेटन हाउस, रेड स्टोन, व्हाइट मार्बल, जिस बिल्डिंग में आपको लेके चल रहा हूँ, शाहजहां की 2 बेटियों के पैलेस बने हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको आर्टिफिशियल गोल्ड है, रियल गोल्ड नहीं है। क्योंकि जब ब्रिटिश लोगों ने इस बिल्डिंग में हमला किया था तो सारा गोल्ड, सारा चांदी, डायमंड, हीरे जवाहरात जो भी जमाने में थे मुगल शासन में, सारा लूट के यहाँ से ले गया। फ्रेंड ऑफ द गार्डन फॉर द मुगल गार्डन, ग्रेव गार्डन, अंगूरी बाग, क्योंकि इसी गार्डन का नाम है मुमताज बेगम गार्डन। शाहजहां मुमताज का सबसे रॉयल फैमिली का रॉयल गार्डन बनाया था बादशाह के लिए। किंग जमाने में नो एवरीबॉडी लाइटिंग सिस्टम, उस जमाने में लाइटें नहीं होती थी, मशाल कैंडलें जलाई जाती थी राजाओं के जमाने में 400 साल पहले से। शाहजहां मुमताज पैलेस, व्हाइट मार्बल, इस बिल्डिंग में शाहजहां मुमताज रहते थे। शाहजहां की 2 बेटियों के 2 पैलेस आपके सामने बने हुए, पालकी शेप में। पालकी का मतलब तो आपको पता ही होगा, किंग जमाने में जो बेटियां रुखसत होती थी उनको डोलियों में पालकी में विदा करने का रिवाज था बादशाह। शाहजहां से बड़ा हिंदुस्तान में कोई किंग नहीं था जिसकी बराबरी को किंग कर सके, तो शाहजहां ने हिंदुस्तान की 2 बेटियों ने कसम खाई जब तक भारत में रहेंगे। और मुमताज रेडी फॉर द वॉशरूम प्लेस, वी हैव टू 1,50,000 गिलास, जिसको बादशाह ने सीरिया से परचेस करके मुमताज के लिए लगाया था। बट किंग टाइम एवरीबॉडी नो लाइटिंग सिस्टम, 2000 कैंडल बादशाह जलवा देते तब मुमताज का वॉशरूम होता था, क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में हीट वाटर, पर वाटर हीट कैसे होगा? नो लाइटिंग, नो गीजर, तो 2000 कैंडलें जलती थी मार्बल को हीट करने की। तब मार्बल हीट होता था, तब मुमताज के लिए वॉशरूम में पानी आता था हीट वाटर वॉश करने के लिए। लेकिन फॉर द डायरेक्शन मूवी इंडियंस, फॉर द डायरेक्शन द एक्टर फॉर द दिलीप कुमार, मुगल आजम मूवी, एंड फर्स्ट पार्ट फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट, सेकंड पार्ट फॉर द कलर। इसके 2 पार्ट आते हैं, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट में। मुगल आजम का डायरेक्शन भी यहाँ से लिया गया था शीश महल के लिए। पर अभी मैं आपको वो पॉइंट दिखा रहा हूँ जहाँ बेटे ने अपने फादर को नजर कैद किया था आगरा फोर्ट में 8 साल के लिए। वी 220 किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंग, जिसको बादशाह अकबर ने आगरा फोर्ट से दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर कनेक्ट किया था। पर यह सुरंग आगरा फोर्ट से भी क्लोज है और ताजमहल के अंदर से भी क्लोज है, दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर से भी क्लोज है। पर व्यू ऑफ दिस ताजमहल, यमुना नदी बैक साइड, क्योंकि बादशाह ने 2 ताजमहल बनाए थे, व्हाइट ताजमहल मुमताज की मोहब्बत के लिए और ब्लैक ताजमहल अपने लिए। 39 साल की उम्र में मुमताज का मौत हुआ बुरहानपुर एमपी के अंदर, औरंगजेब का मर्डर हुआ औरंगाबाद के अंदर, पर शाहजहां का लिविंग मौत हुआ आगरे के अंदर, जहाँ पे समाधि बना हुआ है अकबर टॉम के नाम से। पर अभी आप लोगों ने फोटोग्राफी लिया व्हाइट मार्बल बिल्डिंग शाहजहां मुमताज पैलेस का। दूसरा फोटोग्राफी का मैं आपको समय देने जा रहा हूं, जिसका नाम है जैस्मिन टावर, शाहजहां का प्लेस, विल्टू 9025 फॉर द कलर स्टोन, एक ऐसे कलर स्टोन जिसको हिंदी में नाम दिया गया मीनाकारी डिजाइन, जो मैं आपको दिखाता हूं शाहजहां का प्लेस में। पर सभी लोग ग्रुप बना के चलेंगे बिल्डिंग के ऊपर, शाहजहां की जेल के ऊपर। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. ये आगरा फोर्ट की वो जगह है जहाँ बेटे ने फादर को क्लोज करा था इस वाले कमरे के। ये बादशाह का बैक साइड वाटर सिस्टम अंडरग्राउंड, इसका टैंक छत पर बना हुआ है। यहाँ पे बादशाह के लिए पानी आता था, नीचे आप देखोगे हॉल बना हुआ है, हॉल से पानी सीधा फाउंडेशन में जाता था। यहाँ से बादशाह इस पानी को इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। पर इसका नाम है जैस्मिन टावर, मुसफ्फल बुश, जहाँ से बादशाह को जब मस्जिद की अजान की आवाज आती थी तो बादशाह वुजू करके नमाज अदा करने जाते थे मीना मस्जिद के अंदर। अंदर आप देखोगे पत्थरों में कटिंग किया गया हुआ है, कैंडल और दियों के डिजाइन बनाए गए, सामने सारे फ्लावर कलर स्टोन। जहां से अभी मैंने आपको जैस्मिन टावर दिखाया था, शाहजहां का प्लेस, शाहजहां की जेल, वहां से बेटे ने सिर्फ बाप को नमाज पढ़ने का परमिशन दिया था। वहां से बादशाह आते थे, इसके ऊपर जाते थे, नमाज अदा करते थे। नमाज अदा होने के बाद बादशाह को उसके कैदखाने में शिफ्ट करने का परमिशन था। यहाँ पर 2 मुगल सिंहासन बने हुए, ब्लैक मार्बल, व्हाइट मार्बल। As you fade away,
fade away. Second of the last point, दीवाने आम. दीवाने आम मीन्स आम जनता की लोकल अदालत. इन ज़माने में बादशाह की जो मीटिंग होती थी वो दीवाने आम के लिए. पर यहाँ पर आपके सामने 3 मुगल सिंहासन बने हुए हैं. इसमें कभी भी तीनों बादशाह एक साथ में नहीं बैठे थे. अकबर का मीटिंग होता था, हिंदू बीबी जोधा सामने बैठती थी विंडो के अंदर. शाहजहाँ का मीटिंग होता था, मुमताज़ का रियलिटी नेम था नूरजहां अंजुमन बानो और शाहजहाँ का नाम इतिहास के अंदर था खुर्रम के नाम से. लेकिन बादशाह वहाँ बैठते थे. बादशाह के जो वजीर होते थे वाइट स्टोन के ऊपर बैठते थे. वीआईपी लोग पूरे हॉल के अंदर, पब्लिक गार्डन बैक साइड. लेकिन बादशाह के 64 बड़े मंत्री थे और 64 मंत्रियों के लिए बादशाह ने 64 खंबे बनवा के तैयार करे. इसको बोला जाता है 64+ पार्लियामेंट हाउस. आम जनता की शिकायतों का समय. बैक साइड जो मोस्ट आप देख रहे हैं, शाहजहाँ के मुस्लिम गवर्नरों की नमाज पढ़ने की जगह. भारत के लोकल गवर्नर थे जिनका नाम था जॉन रसल कॉलरिंग. बैक साइड देखिए, उनका डेड बॉडी बना हुआ बिल्डिंग के बाहर में. लेकिन बादशाह पब्लिक को देखेगा, पब्लिक बादशाह को देखेगी. दोनों के लैंडस्केप व्यू के सामने कोई भी खंभा आपके के बीच में नहीं आ. भी आप देख रहे हैं लाइटिंग और कैंडलों के लिए डिजाइन बनाए गए थे. हिंदुस्तानी कमान को संभाला. 10 बड़े रतन थे. 7 रत्नों को हिंदुस्तान के रत्नों में बादशाह ने डिवाइड किया था, क्योंकि एक मुगल 10 किलो को अपने समाधि के अंदर हासिल नहीं कर सकता था. बादशाह के 3 रतन उनके साथ में रहते थे. पहले रतन का नाम था तानसेन, दूसरे रतन का नाम मुल्ला दो प्याजा और तीसरे रतन का नाम था बीरबल. क्योंकि जब तानसेन मीजू बजाता था तो जोधा ठुमके लगाती थी बादशाह को खुश करने के लिए. सबसे लाइक बीबी थी मुमताज़ के लिए और शाहजहाँ के लिए. पर सेकंड बीबी बनी मुमताज़ और शाहजहाँ के लिए. हिंदू बीबी जोधा अकबर बादशाह के लिए. अगर जोधा अकबर की लैब में नहीं आता तो अकबर हिंदुस्तान को हिसाब किताब से कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाता. लेकिन आगरा फोर्ट के लिए ये सारा व्यू मैंने आपको दिखाया. पर अभी एक व्यू मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ रॉयल गेट के पास. लेकिन एक बात में फ्रेंड आपको बता दूं कि यहाँ से रॉयल गेट का देखने का मतलब है बिल्डिंग का मेन डायरेक्शन पॉइंट. तो अभी आप लोगों को बता दूं, अभी हम लोग बाहर चलेंगे. बाहर में किसी भी चीज़ को एवरीबडी टच नहीं करना है, ना लेडीज़ को ना जेंट्स को. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് രാജ. രാജ നമ്മുടെ 2 വേർഡ് പറയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. 2 words for all these is Kerala people, very nice people. All these is Kerala Mandi people. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ റെഡ് ഫോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു നമ്മുടെ രാജ സാറ്. അപ്പോൾ വെരി താങ്ക്സ്. ഒരുപാട് ഉണ്ട് ആഗ്ര ഫോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ സഹായം തേടി. പക്ഷേ ആ ഗൈഡ് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെയും എല്ലാവർക്കും പാടി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ടിക്കറ്റ് ബൈ. I really hope that you will choose to stay through all